Hello everybody. Now today we are going to start the next chapter is electrochemistry. So what are the learning objective in this chapter? You can see here there are 10 important objectives from this chapter. All the objectives are written here. You can see. Just watch it. So what are the objectives for the today's session, my dear students? Today we are going to learn electrochemistry, its general introduction, electrochemical cell and its type. How many type of electrochemical cells are there? Galvanic cell, then oxidation reduction concept we will learn, and in connection with the galvanic cell we will learn about the electrolytic cell, cell potential and its calculation method. But today in this session we are not going to learn about the calculation method. About that we will learn in next session in the second class. So my dear students, today's important chapter is going to be started, that is electrochemistry. So my dear students, what do you mean by electrochemistry? Electrochemistry. Now this word electrochemistry includes two different words: electro, that is electrical energy; chemistry, that is the chemical. So we can say that it relates to electrical energy एंड केमिकल एनर्जी. तो इसका संबंध बच्चों किसके साथ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी से. बोथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, converted to chemical energy. In short, I am writing CE, chemical energy, and that type of cell is called electrolytic cell. Or chemical energy is converted to electrical energy, E dot E, electrical energy. In short, I am writing here, and such cell is called galvanic cell or voltaic cell. So my dear students, is it clear to all of you? What do you mean by electrochemistry? Actually, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the chemical changes and also the conversion of electrical energy to convert into chemical energy, and chemical energy can be converted into electrical energy. So there are two different type of cells which can do these two possibilities, that is electrolytic cell and galvanic cell. तो electrochemistry क्या है बच्चों, ये समझ में आ गया. So now again the definition is written here. It is the study of production of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about a non-spontaneous chemical change. बच्चों अगर electrical energy का प्रोडक्शन होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो वो आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हो किसी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? सो व्हाट कैन यू से? बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपने बैटरी देखा, सेल देखा, फ्यूल सेल देखा है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उसका यूज हम लोग करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द वर्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सबसे पहले हमें ये पढ़ना है. तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली इट इज अ सेल और इट इज अ डिवाइस विच आर कैपेबल ऑफ, इसकी दो कैपेबिलिटी की हम चर्चा करेंगे. इधर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन,
जो आपने शुरू में दो सेल का नाम देखा, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उस सेल को बोल सकते हैं जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेट करे फ्रॉम केमिकल रिएक्शन से, और दूसरा हो सकता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बच्चों वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। सो व्हाट आर दोज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? Just see here, galvanic cell and electrolytic cell, and the most important part is galvanic cell. Is it clear? And about the electrolytic cell, just we will see at the end of today's session. So okay, again you can say, you can write the definition from here. A galvanic cell is a cell which converts chemical energy into electrical energy, and electrolytic cell is a cell which converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ओके, तो आप सबको इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। एक डिवाइस है जो दो फंक्शन कर सकता है। इट कैन डू टू फंक्शंस, और टू फंक्शंस कैन बी कैरिड आउट थ्रू दिस टाइप ऑफ सेल्स। वन, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है, और सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम यू मे राइट, यू मे कमेंट इन द गूगल क्लास रूम। ओके, सो नाउ galvanic cell, the most important point और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, गैल्वेनिक सेल। और आज के सेशन में बच्चों हम इसी गैल्वेनिक सेल को और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेंगे, because from the second sessions going to be very very important, and it is based upon the first session. Today's session is important for the learning point of view, for understanding point of view, for the further session in this chapter. तो बच्चों galvanic cell क्या है? It is an electrochemical cell convert the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हो कि एक सिंपल डैनियल सेल इज ए गैल्वेनिक सेल, और उस डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक एंड कॉपर आर यूज्ड फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी हम समझा देंगे। पहले डैनियल सेल के ऊपर चर्चा कर ले, वहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होता है। जिंक और कॉपर का यूटिलाइजेशन होता है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखो। Copper has two positive charges and zinc is in the solid state, neutral state. इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका +2 है। अब ये +2 हो गया और ये 0 हो गया। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 to +2, दैट इज ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +2 to 0 for copper, that is reduction. This in the next slide I am going to explain oxidation and reduction reaction once again, but you have already studied in class 11th in about this in electrochem. Now see here, oxidation half part क्या है आपको, जिंक से जिंक आयन का बनना सॉल्यूशन में, और रिडक्शन हाफ क्या है बच्चों, कॉपर आयन is gaining 2 electron and it is converted into its solid form, that is copper. मेटेलिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, जो गैल्वेनिक सेल था, उसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। इसमें दो डिफरेंट पार्ट आप देख रहे हो, यू कैन सी हियर। जो लेफ्ट हैंड इस पार्ट को, नाउ दिस पार्ट where Zn to Zn2 plus oxidation is taking place, इसको हम कहते हैं लेफ्ट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड राइट साइड। ओके, राइट हैंड की तरफ आपके है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। सो नाउ
व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी हियर, आप क्या देखते हो, जो लेफ्ट साइड में आपका जहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली उसमें जो जिंक का रॉड है, दिस रॉड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है आपको कोई मेटल होता है जिसको उसके सॉल्यूशन में आप डालते हो, और जिसके सरफेस पर और जिसके इंटरफेस पर, सॉल्यूशन और उस रॉड के इंटरफेस पर आपको रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल होता है। इज इट क्लियर? तो नाउ इस लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जस्ट यू कैन सी ये जिंक मेटल जो है वो आयन के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, ओके, लेफ्ट साइड में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के रॉड के ऊपर वो छोड़ के आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है। दैट्स वाई दिस रॉड दैट इज द इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक having more electrons on its surface, it becomes negatively charged। और चूंकि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एनोड। ऑलवेज गेट रिमेंबर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के गैल्वेनिक शेल में जो एनोड है इट इज रिप्रेजेंटेड एज निगेटिवली चार्ज्ड, उसके ऊपर माइनस साइन देते हैं। अब कॉपर की तरफ क्या हो रहा है बच्चों, देखो सॉल्यूशन से कॉपर जो है वो मेटल के प्लेट के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सो नाउ देयर आर टू प्रोसेस हैपनिंग हियर, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एंड इन द राइट हैंड साइड रिडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। सो नाउ व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, जस्ट गो थ्रू द रिवीजन, एक बार इनको बच्चों आप रिवाइज करो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, बाय स्पीसीज और कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने जिंक का देखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Zn +2 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। I am writing Cu2 plus 2 electron copper. So it is the reduction. Now there are two terms, oxidizing agent. Who is oxidizing agent? अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। किसके कारण हो रहा है, कॉपर के कारण। क्योंकि कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो देन व्हाई जिंक विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, and that species is reduce। जैसे आपको ट्रेवल एजेंट है, वो खुद ट्रेवल नहीं करता, वो फैसिलिटेट करता है। तो जिंक के ऑक्सीडेशन के लिए अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि इस रिएक्शन में अगर Zn नो सी इन दिस रिएक्शन Cu2 plus ion, सो नाउ व्हाई जिंक इज डोनेटिंग, इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन कौन कर रहा है, जिंक, सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो नाउ इट बिकम Zn2 plus and it become copper। So this is oxidation and this part is reduction। Is it clear? सबको समझ में आ गया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन है, जिंक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस टर्म शुड बी वंस अगेन रिवाइज्ड एंड मेमोराइज्ड। ओके, सो मूविंग। अब तक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। गैल्वेनिक सेल में एक ऑक्सीडेशन एक इलेक्ट्रोड पर होता है, एक पर रिडक्शन होता है। सो नाउ मूविंग, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, वहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है मेमोरी करने के। लियो द लायन सेज L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हो, ऑयल रिग, जैसे ONGC में ऑयल रिग होता है, तो ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लूज इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन इज गेन
electron. So oil rig oxidation is lose electron, reduction is gain electron. ओके क्लियर। अब बच्चों यहाँ आपने जो पहले सेल देखा उसका एक हाफ सेल में क्या था, रिडक्शन हो रहा है तो उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेल बोलेंगे, जैसे कॉपर के इलेक्ट्रोड पे हो रहा था। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड वाले पार्ट को बोलेंगे। एंड दीज टू पोर्शन ऑफ द सेल आर कॉल्ड हाफ सेल्स और रेडॉक्स कपल्स, इसको रेडॉक्स कपल्स भी हम लोग बोलते हैं। आपको याद रखना होगा इस पॉइंट को। ओके नाउ अगेन सी हियर, उसी पॉइंट को थोड़ा यहाँ पर हम क्लियर। नाउ लेट अस क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट हाउ अ गैल्वेनिक सेल इज प्रिपेयर्ड। उसके गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे करते हैं बच्चों, जरा देखो। उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक पार्ट होगा जो राइट हैंड साइड होगा। ऑब्वियसली इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो ZnSO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग पार्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है ना, ये हमारा एक पार्ट है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर और इलेक्ट्रोड को कंटेनिंग जो पार्ट है हमारा वो राइट हैंड साइड है। ओके तो अब आप बताओ ऑक्सीडेशन किस पार्ट में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलते हैं उस इलेक्ट्रोड को, और उसका सिंबल क्या होगा, माइनस। जस्ट सी हियर माइनस। राइट हैंड साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसका साइन क्या होता है, सिंबल प्लस। एंड कैथोड where reduction take place. So left hand part is anode, right hand part is cathode. At anode oxidation take place and it is denoted by negative sign. At cathode reduction take place and it is denoted by positive sign. And these two different half cells, one is called oxidation half cells and another is called reduction half cells, where the spontaneous redox reactions are taking place, is connected with each other through a salt bridge. अभी इस सेशन में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, फर्दर हम सॉल्ट ब्रिज के ऊपर अगला सेशन जब लेंगे जहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज इंट्रोडक्टरी सेशन हम इसको मान के चल रहे हैं, देन आई विल क्लैरिफाई मोर। सो इन जस्ट हियर मेक योर ओन कॉन्सेप्ट that in an electrochemical cell, that is a galvanic cell, there will be two parts, two half cells, oxidation half cells, reduction half cells. Oxidation half cells where oxidation take place, reduction half cells where reduction take place. Now just see here how the oxidation is taking place. बच्चों देखो ये मेटल का एटम्स है, यहाँ से Zn से देखो इलेक्ट्रॉन Zn आयन के रूप में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ छोड़ दिया, दिस इज द ऑक्सीडेशन। अब इस साइड देखो सॉल्यूशन में ये कॉपर आयन है, जो इलेक्ट्रॉन आपको इस वायर के थ्रू, जस्ट हियर वायर के थ्रू आया, उस इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया, आउटर सर्किट से यह इलेक्ट्रॉन आ रहा है और करंट का फ्लो इधर से होगा, तो ये कॉपर आयन सॉल्यूशन जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो थिकनेस होगी एनोड की वो कम होगी, कैथोड की बढ़ेगी। अब इसको बच्चों कैसे आप याद रखोगे, उसके लिए मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू रिमेंबर दिस। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, लोन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे है, राइट साइड में आप याद कर लीजिए RCRP, और बीच में आप बना दो सॉल्ट ब्रिज। नाउ लोन मीन्स लेफ्ट, L for left, O for oxidation, A for anode, sign for negative. Clear? Lone left side oxidation taking place, oxidation half cell which is anode and having negative sign. बीच में salt bridge, right hand side में right, R for right, C for cathode, R for reduction और P for positive side. So for right side which is cathode, right side half cell is cathode half cell, it having reduction half cells where cathode take place and which is reduction half cell and it has positive in sign. Is it clear? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किस तरीके से
याद कर सकते हैं, इट इज़ अ मेमोरी एड। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज galvanic cell. We are talking about the galvanic cell, not about the electrolytic cell. वहाँ साइन कन्वेंशन दूसरा होगा. ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर. यहाँ तक सबको समझ में आ गई. इफ एनी बॉय हैव एनी स्टूडेंट्स हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट मी इन द गूगल क्लासरूम सेशन. वहाँ पर आप जरूर कमेंट करें, ये टॉपिक मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, आई विल क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट. यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज़ द गैल्वेनिक सेल, उसके हाफ सेल्स कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है. और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम एनोड के ऊपर देखते हैं और वहाँ पर साइन नेगेटिव होता है. इतनी बातें बच्चों याद रखना. और अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की चर्चा करने से पहले, पोटेंशियल आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, यहाँ एक मैं डिस्कस करता हूँ. मान लो कि एक सॉल्यूशन है. Suppose in this container solution is taken. Suppose the solution is taken of a metal M का solution है, and now a metal electrode is dipped into it. इसमें एक metal electrode को हमने dip कर दिया. तो अब what are the possibilities, क्या क्या possibilities हो सकती है. नंबर 1 possibilities है कि मेटल जो यहाँ से है वो Mn+ आयन के रूप में चला जाए, n इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर छोड़कर. पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1. दूसरा है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्यूशन में Mn+ आयन है और ये यहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाए n इलेक्ट्रॉन गेन करके ये. और तीसरी पॉसिबिलिटीज़ है मेटल आयंस कोलाइड और विथ इलेक्ट्रोड बट नथिंग टेक प्लेस. वहाँ गए जस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है. तो या तो इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन में मेटल आयन को रिलीज करेगा और खुद इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, या सॉल्यूशन से मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रोड से गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट होगा. इट मीन्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेटल का सरफेस है और जो सॉल्यूशन है उसके इंटरफेस पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. समझ में आ गया यहाँ तक? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन. मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर? अब तीन सिचुएशन की बात की, इसमें 2 सिचुएशन की हम बात कर लेते हैं. अब सपोज करो बच्चों कोई मेटल M है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है n इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में. तो ये कौन सा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बताओ? ऑक्सीडेशन. इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, चूंकि इलेक्ट्रोड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, and now it has gone the potential difference, there is a setup of potential difference between electrode and its solution, hence it is called the potential which is generated here, it is called oxidation potential. और अगर आप बात करो कि नहीं कोई मेटल आयन Mn+ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और डिपॉजिट हो जाता है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है. तो यहाँ क्या पोटेंशियल जनरेट होगा? रिडक्शन पोटेंशियल. तो पोटेंशियल कैसे सेटअप होता है? ये टेंडेंसी होती है, कुछ इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन. सम इलेक्ट्रोड्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड सच tendencies just create a potential difference between the metal and its solution, and that is called electrode potential. मेटल के और उसके सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम कहते हैं. क्लियर? So now the definition of potential difference develops between the electrode and the electrolyte. It's called electrode potential. एनोड जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे. कैथोड वेयर द रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एंड
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। मानो कि इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैथोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उन दोनों के जब डिफरेंस को आप देखोगे फॉर अ गैल्वेनिक सेल, देन दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। उसको आप क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल कहेंगे, एंड इट इज मेजर्ड इन द यूनिट वोल्ट्स। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, एम मेटल Mn प्लस में जो हमने जस्ट अभी आपको समझाया, यहाँ पर आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, अपोजिट एक दूसरे के। नाउ दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से आप देखो, याद रखना इसके सारे मीनिंग्स को। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बच्चों अभी आपने देखा कि अगर आप कहते हो कि आप ऐसे कहते हो कि Mn प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन Na, कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आप बात करते हो, कहते हो कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, सपोज करो इट इज प्लस x। अब इसका अपोजिट अगर आप करोगे तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, अब इसका ही आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, जस्ट इट इज माइनस एक्स। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले पॉइंट, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। एक्सेप्टेड कन्वेंशंस दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट एंड कैथोड ऑन द राइट वाइल रिप्रेजेंटिंग। जब एक गैल्वेनिक सेल को आप रिप्रेजेंट करोगे तो याद रखना एनोड को हमेशा लेफ्ट में और कैथोड को राइट में, ये साइड आप चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल are now called standard electrode potential. My dear student, this is the going to very important concept. देखो बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोड का आप बहुत ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा उसी चीज को समझो। अगर आप लिखते हो कि नहीं Zn जो है वो Zn प्लस प्लस आयन बनाता है सॉल्यूशन में by losing 2 electrons. Now this reaction is oxidation, ये ऑक्सीडेशन है, ओके। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, जस्ट पोटेंशियल को मैं E से डिनोट करता हूँ और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नॉट लगा देता हूँ, E नॉट। क्लियर? नाउ व्हाट डू यू सी, व्हाट यू कैन से, इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन यहाँ लिख दिया हमने और इसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर। सपोज करो अगर आप वैल्यू देखोगे, आपको अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जब बात करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम जब वहाँ पर डिफरेंट सेल्स के लिए जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपको डाटा दिया हुआ है, वहाँ पर Zn की वैल्यू दी गई होगी। Zn की वैल्यू मान लो होता है प्लस 0.76 वोल्ट। अच्छा, अगर आप ऐसे लिख दो, रिएक्शन को रिवर्स कर दो, Zn 2 प्लस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ Zn। नाउ व्हाट विल यू से, इट इज रिडक्शन। इसका पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब माय स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कहा कि जब आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे उस समय आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अब किसी भी इलेक्ट्रोड्स के लिए दी जाएगी, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी जिसको मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, इसको ही उसने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए देयर इज नो इशू। आप तो सिर्फ क्या करो, रिएक्शन को रिवर्स कर दो। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में आपको गिवन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया और उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली कहते हैं। इज इट क्लियर? यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। The cell potential is the difference between the electrode potential of cathode और एनोड। कैथोड और एनोड के पोटेंशियल को, क्योंकि अब कैथोड का क्या दिया हुआ रहेगा आपको, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। और यही एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना माय डियर स्टूडेंट्स,
कभी भी सेल पोटेंशियल निकालना हो, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से सब्सट्रैक्ट कर लो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यू विल गेट दिस फार्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या कह सकते हो आप इसको ऐसे, ई कैथोड, यहाँ लिख लो रिडक्शन, माइनस ई एनोड रिडक्शन। क्यों? राइट साइड में कैथोड होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और लेफ्ट साइड में एनोड होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। सपोज दैट अ रिएक्शन इज गिवन हियर, कॉपर 2Ag, कॉपर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, Ag सिल्वर मेटल बन रहा है। इसके हाफ रिएक्शंस आप देखो बच्चों, बहुत इजीली आप देख सकते हो कि कॉपर से क्या बनाओगे आप, कॉपर आयन, और सिल्वर आयन से क्या बनाओगे, सिल्वर बनाओगे। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा है। अब जब आपको एक सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, फिर आप सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ हमें सीख लेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने क्या बताया था, लेफ्ट साइड में आप क्या रखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड में आप क्या रखोगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपर से कॉपर आयन के रूप में चेंज होना, ये आपको हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड पार्ट हो गया, और ये निगेटिव हो गया। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया, निगेटिव, आई एम जस्ट मेंशनिंग द साइन हियर, दिस इज निगेटिव। और यहाँ पर पहले आयन आया, फिर आपने लिखा है इसका मेटेलिक फॉर्म, यानी रिडक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। देखो बच्चों, यहाँ लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा है, पहले हमने मेटल को लिखा, फिर उसका आयनिक फॉर्म लिखा, यानी कि हम ये कन्वर्जन क्या दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पहले आयनिक फॉर्म लिखा, उसको किस रूप में कन्वर्ट किया, मेटेलिक फॉर्म में। ये कन्वर्जन क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। बीच में ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट करने का ये तरीका लिख ले। यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जो आपको हमने अभी पहले बताया था। सो सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल में विशेष रूप से कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, जस्ट सी हियर, एनोड हाफ सेल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और उस समय कैथोड को राइट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे यहाँ देखो, एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड। सिंगल वर्टिकल लाइन, दिस लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन separates the metal from aqueous solution, और डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन होगा उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक बार इस एग्जांपल से और समझा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सपोज दैट एक कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप ले लो, आपको मान लीजिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने दिया, अपनी तरफ से मैं लिखता हूँ, दैट इज़ कि अगर आपको लिखना है FZN प्लस PB2 प्लस ZN2 प्लस एक्वस PB, यहाँ पर बच्चों एक्वस कर लो ना। इसको आप सेल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन पार्ट हमारा जिंक से जिंक आयन का बनना है, तो आप क्या लिखोगे, ZN सॉलिड है, सिंगल वर्टिकल लाइन ZN2 प्लस, मोलर कंसंट्रेशन जो इसका दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन में, सपोज करो 1 मोल है, जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगा, अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 मोलरिटी है तो 1 है मोलर कंसंट्रेशन। फिर डबल वर्टिकल लाइन, अब लेड आयन का कंसंट्रेशन Pb2 प्लस, इसका मोलर कंसंट्रेशन भी मान लो 1 m है, इट विल बी गिवन इन स्मॉल ब्रैकेट, सिंगल वर्टिकल लाइन, देन Pb सॉलिड। तो ये तरीका, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, बीच में सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट, आगे हमें नॉर्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल में ये बहुत हेल्प करेगा, सीखना है। ओके, नाउ आगे बढ़े। नाउ यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज द गैल्वेनिक सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल्स क्या होते हैं,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल किस तरीके से होगा, उसका लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड और सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमने लिखा। अभी सॉल्ट ब्रिज पे हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ऑब्वियसली जस्ट अपोजिट टू द गैल्वेनिक सेल। वहाँ पर क्या था, केमिकल चेंज के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई केमिकल चेंज, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कुछ इस तरीके का होता है। आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को याद करो। यहाँ पर एक बाहर से सेल लेते हो और 2 रॉड यूज करते हो जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सेल के जिस पॉजिटिव टर्मिनल से आप अटैच करते हो और इलेक्ट्रोड को उसको एनोड बोलते हो, और जिस नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हो जिस इलेक्ट्रोड को उसको आप कैथोड बोलते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहता है और कैथोड नेगेटिव साइन लेता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई केमिकल चेंजेस होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ भी जो आपका इलेक्ट्रोड है एनोड, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड जो है रिडक्शन होगा। ऑलवेज रिमेंबर, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस, क्योंकि ये ट्रुथ है, इसको चेंज नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जस्ट उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है और यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यहाँ रेडॉक्स तो है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और यहाँ पर एनोड हमारा नेगेटिव साइन होता है, कैथोड पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ एनोड पॉजिटिवली साइन होता है, यहाँ कैथोड नेगेटिव साइन होता है। यहाँ दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? सो टुडे सेशन व्हाट डू वी लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों के? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टर्म का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, उसमें 2 तरीके से जो प्रोसेस होता है उसका गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होगा, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो 2 हाफ सेल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ सेल्स, उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल की हमने चर्चा की उसके ऊपर हम लोगों ने देखा। और जो IUPAC का जो जो एक्सेप्टेड है कन्वेंशन कि रिडक्शन पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में माना जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन। अब हम जब फर्दर सेकंड सेशन लेंगे वहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे, वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, नॉर्स्ट इक्वेशन, दैट इज आवर मेन सेशन। द सेकंड सेशन इज गोइंग टू बी मोस्ट important. Okay, so thanks for watching this video. Like and subscribe the channel. आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें. So okay, once again thanks to all, and you can subscribe, you can log into my blog also which is given here. Thank you, have a nice day.